Hello, all the students. Welcome once again to Icon Says Cat YouTube channel. My name is Anil Chaudhary, your coach for VARC section of English. So, verbal ability and reading comprehension को लेकर students, we have started a series of live sessions, and our promise is 100 cat level passages we people are going to solve on this YouTube channel. तो ये 100 passages तो हमें solve करनी है, but इसके अलावा if any student wants कि सर मैं डेडिकेटेडली VARC का पूरा कोर्स लेना चाहता हूं, तो यस वी पीपल डू हैव इट। पूरा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसमें वोकैब, ग्रामर एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन along with the other varieties of asking questions. Let it be parasummary, let it be critical reasoning, let it be parenthesis, ऐसे जितने पॉसिबल पैटर्न्स आते हैं कैट में, एवरीथिंग स्टूडेंट्स वी पीपल विल बी डिस्कसिंग इन दैट कोर्स। इसके अलावा वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च अ कंप्लीट डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर DILR ऑल्सो, एंड स्टूडेंट्स मैथ्स को लेकर तो ऑनलाइन भी पूरा कंटेंट और कोर्स अवेलेबल हैं, और अंकित सर के लाइव सेशंस तो चल ही रहे हैं। तो एनीवे स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, एक बहुत अच्छा सा लाइव सेशन वी पीपल आर गोइंग टू टेक, एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आई विल बी टेकिंग 2 थिंग्स टुडे। सबसे पहले आई विल टेक अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन where a simple paragraph is given to us and one question will be based on that. उसके बाद I'll be taking one passage, and the passage which I'll be discussing today will be one of the actual CAT passages. So actual CAT passages, but at the same time I have chosen a passage जो कि बहुत ज़्यादा tough ना हो। So you will actually come to know कि ये जो myth है, ये जो perception है कि सर CAT का जो passage है वो बहुत ही tough होता है, it is beyond comprehension. Students, we need to overcome that. If you see CAT के जो 4 पैसेजेस आते हैं उनमें से 2 या 3 पैसेजेस will not be so tough. अब यूँ मानकर चल सकते हैं कि out of 4, 2 पैसेजेस will be manageable. 1 थोड़ा सा टफ होता है और 1 तो स्टूडेंट्स डैम टफ होता है। तो वो जो डैम टफ होता है बस उसी को छोड़ना है, अंडरस्टैंड। सो टुडे आई हैव टेकन वन पैसेज व्हिच वाज देयर इन एक्चुअल आई गेस CAT 2019। तो उस पैसेज को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। And the basic objective is to make you understand sometimes when we people get prejudiced, how we get wrong answers. तो कैसे हम लोग गलतियां करते हैं, और कई बार स्टूडेंट्स हमारे खुद के जो false assumptions होते हैं they actually become a barrier in giving the correct answer. So let us start with very simple question, not so simple but a small question. तो चलिए स्टूडेंट्स, the second class of reading comprehension, and this becomes one question where a small paragraph is given to us and one question is based on it. इस पैटर्न को हम जनरली कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, एंड इस क्वेश्चन को लेने का ऑब्जेक्टिव जैसे ही स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यू विल एक्चुअली कम टू नो दैट। यस ऑल द स्टूडेंट्स, इफ यू पीपल आर वाचिंग द रिकॉर्डेड क्लास, आप आराम से इसको पॉज करो एंड देन यू पीपल ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर, ओके। और सबसे पहले खुद सोचो एंड उसके बाद लिसन टू my explanation. Yes. Yes. चलिए स्टार्ट करते हैं discussing this particular paragraph. Now see students what the paragraph says, and moreover let us first try to understand what the question says. कभी भी it is always advisable to have a look over the question first and then come on the paragraph. So if the statements above are true, then it must also be true that. Okay? So कुल मिलाकर students, we need to find out whatever is given in the paragraph, if it is true, तो इन 4 options में से कौन सा true होगा ही. Okay? चलिए, coming on the paragraph now. As part of a delicately balanced system, the human heart secretes a hormone, a substance that controls the amount of salt in the blood and the volume of blood circulating within the body. Only very small quantities of the hormone are required, and this hormone is extremely important in regulating blood pressure and is found in large amounts in the blood of those suffering a heart attack. So students, when we read this paragraph, I guess understanding this paragraph is not so tough. इसमें दे रखा है कि जो ह्यूमन हार्ट है दैट सेक्रीट्स हार्मोन, एंड वो जो हार्मोन है उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, एंड दिस हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
in regulating the blood pressure. और साथ में स्टूडेंट्स इट इज गिवन दैट स्पेशली जिन्हें हार्ट अटैक होता है उनके ब्लड में दिस हार्मोन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलती है. ओके, so coming on students, on the basis of whatever is given here, we need to find out among the 4 options which is true. Yes, what is the correct answer? Yes. I'm very sure जब आप इसका correct answer दोगे तो many students will give first option as the answer, many students will give second as the answer, and many students will give third as the answer, isn't it? आप चेक कर लेना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा. चलिए फोर्थ ऑप्शन को तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रूल आउट कर दिया होगा. अभी तक किसी फोर्थ ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज एनीवे इट इज टॉकिंग अबाउट सम मैकेनिकल पंप एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन हार्ट. तो स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन को स्टूडेंट्स ने एब्सोल्युटली रूल आउट कर दिया होगा. चलो एनीवे डिस्कस करते हैं व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर हियर. Now see students, when I'll be discussing each and every option, I'll take some time. Because जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, to be very honest, मैं सिर्फ इस एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ. मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे अपने को इन डेप्थ सोचना है. And many times we people make false assumptions, and many times the conclusions which we draw they are actually wrong. तो कैसे गलत कंक्लूजन से बचना चाहिए. एंड कई बार हम लोग अनवांटेड कंक्लूजन्स ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर इज गिवन इन द पैराग्राफ. तो ये जो एक्स्ट्रा अपन लोग इन्फरेंस निकाल लेते हैं उससे भी स्टूडेंट्स हमको बचना चाहिए. एंड हियर इज वेयर वी ऑफन कमिट अ मिस्टेक. ओके, नाउ लेट अस सी. इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द अमाउंट ऑफ हार्ट हार्मोन सेक्रेटेड, लो ब्लड प्रेशर विल रिजल्ट. जिन बच्चों का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, टू बी ऑनेस्ट ये आंसर गलत है. Why sir? Try to understand. इसमें क्या लिखा है? If there is deficiency in the amount of heart hormone, low blood pressure will result. If I read the paragraph, I come to know that this hormone is extremely important in regulating blood pressure. तो ये तो पता चलता है कि हार्मोन और ब्लड प्रेशर में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है. बट स्टूडेंट्स, नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर. हमें इसके बारे में क्या पता. Is there a direct relationship or inverse relationship? क्या हार्ट हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है एंड कम होने पर ब्लड प्रेशर कम होता है, या फिर इनवर्स रिलेशनशिप, इफ द क्वांटिटी इंक्रीजेस द बीपी कम्स डाउन. एनीथिंग इज पॉसिबल. हमें तो सिर्फ इतना सा पता है कि दिस हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर, बट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर. हाउ कैन आई प्रिज्यूम दैट कि डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. तो आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स. तो ये जो एक्स्ट्रा कंक्लूजन हमने निकाला, स्टूडेंट्स बी केयरफुल देयर. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंडीड नॉट करेक्ट. कमिंग ऑन द सेकंड वन. नाउ पॉसिबली बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर होगा सेकंड. इट इज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द हार्ट हार्मोन दैट कॉज हार्ट अटैक्स टू अकर. नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से large quantities of the heart hormone that cause heart attacks to occur. Now see what is given in this paragraph, try to understand. This particular hormone is found in large amounts in the blood of those who are suffering a heart attack. तो जिन्हें हार्ट अटैक होता है उनके ब्लड में इस हार्मोन की क्वांटिटी स्टूडेंट्स हमेशा ज़्यादा मिलती है. बट स्टिल स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू कंक्लूड दैट large quantity of this hormone is responsible for the heart attack? It can be the other way around also. क्या पता हार्ट अटैक आने की वजह से हार्ट यह हार्मोन ज़्यादा सेक्रीट करता हो और इसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ जाती हो. We actually don't know students because of the increase in the quantity whether the heart attack is occurring or because of the heart attack the quantity is increasing. Students try to understand. मैं जानता हूँ कि whatever I am saying can be quite confusing but be careful here. वापस से इस बात को समझो. यहाँ पर सिर्फ इतना सा लिखा है कि जिन्हें हार्ट अटैक होता है उनके ब्लड में मोर और लार्ज अमाउंट ऑफ दिस हार्मोन इज फाउंड. बट हाउ कैन वी प्रिज्यूम दैट दिस इज द रीजन फॉर द हार्ट अटैक. ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स कि हार्ट अटैक होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ हार्मोन बढ़ गया हो. अच्छा, आई डू अंडरस्टैंड कि इस हार्मोन की क्वांटिटी पूरी बॉडी में बहुत कम चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में इस हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है. But still, what is the relation between large amounts of this hormone and heart attack? So what is the cause and effect relationship? How can we deduce that?
How can we deduce that it is the large amount which is causing the heart attack? It can be the other way around also. I hope you are clear now. So इसीलिए students, second is also not correct. It's a very fantastic question. It will actually help you a lot and develop critical analysis. आप students इस question के बाद हमेशा किसी भी ऑप्शन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करोगे. आप हर ऑप्शन को स्टूडेंट्स क्रिटिकली इवेल्युएट करोगे, एंड दिस इज वेयर द एक्यूरेसी लाइज इन द पैसेजेस एंड इन सच क्वेश्चंस. कमिंग ऑन द थर्ड वन, आई सी कई सारे स्टूडेंट्स का आंसर थर्ड भी हो सकता है. द इफेक्ट्स ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द हार्ट हार्मोन विल बी लॉन्ग लास्टिंग इन द बॉडी. वन थिंग इज वेरी क्लियर, हार्ट हार्मोन का इफेक्ट जरूर है, एंड इवन स्मॉल अमाउंट okay can have a very good effect, but try to understand यहाँ पर जो लिखा है ना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, अब उसका इफेक्ट बॉडी में कितने टाइम तक रहेगा? हाउ कैन वी deduce? Because see students, if I read the whole paragraph, by this I come to know that small quantity of this hormone is needed, but how can we deduce that the effect is going to be long lasting? लॉन्ग लास्टिंग का मतलब तो होता है लंबे टाइम तक, बट स्टूडेंट्स कहीं पर भी टाइम के बारे में नथिंग इज गिवन. Okay, so that is the reason I will not go with third option also. Okay, and now students, जिस option को आपने सबसे पहले rule out किया, indeed that option becomes the correct answer. Yes, all the students try to understand. और अगर ये question अच्छा लगा हो तो सिर्फ इसी question के लिए एक like बनता है understand. और students, why fourth option is correct? डरो मत, मैं समझा देता हूँ. I know कि many of the students, sir कैसे mark कर दिया आपने fourth? Now try to understand, if a device that is only a mechanical pump is used as an artificial heart, it will not perform all the functions of the human heart. You people try to understand, when I read this paragraph, I realized, I came to know that human heart secretes hormone. अभी तक तो मैं समझता था कि ह्यूमन हार्ट का काम होता है केवल ब्लड को पंप करना, मैकेनिकल काम. तो पॉसिबली स्टूडेंट्स पंपिंग का काम, ह्यूमन हार्ट की जगह अगर मैं मैकेनिकल पंप भी लगा दूं तो पॉसिबली वो भी कर देगा. बट हियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ आई केम टू नो दैट देयर इज अ केमिकल प्रोसेस आल्सो व्हिच आवर हार्ट इज डूइंग एंड दैट इज सेक्रेटिंग हार्मोन. सो डेफिनेटली अगर मैं हार्ट की जगह मैकेनिकल पंप लगा दूंगा, इट विल पंप द ब्लड, बट व्हाट अबाउट द केमिकल प्रोसेस? इट विल नॉट बी एबल टू सेक्रेट द हार्मोन एनी हाउ, इजंट इट? सो देयरफॉर स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर, व्हिच सेज दैट an artificial mechanical heart, mechanical pump. Okay, what I mean to say is a mechanical pump which is used as an artificial heart. Okay, it cannot perform all the functions of the human heart because human heart hormones भी बनाता है जो कि mechanical pump तो कर ही नहीं पाएगा. वो केवल blood pump कर सकता है, understand? But it cannot secrete hormone. Hence, fourth option is indeed the best answer. I hope the point is clear. Okay. लास्ट एक अटेम्प्ट और कर लेता हूं, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, डू अंडरस्टैंड. बेटा, हार्मोन का जो काम इस पैराग्राफ में दे रखा है, क्या वो काम को मैकेनिकल पंप कर सकता है? नहीं. तो बस मैकेनिकल पंप हार्मोन को, हार्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता. बस दैट इज द पॉइंट. इसीलिए द बेस्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. ओके, चलिए, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू पीपल डू अंडरस्टैंड दिस वन क्वेश्चन गिव्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू अस. हम लोग स्टूडेंट्स बहुत जल्दी से बायस्ड हो जाते हैं, प्रीजुडिस्ड हो जाते हैं. एंड द बिगेस्ट चैलेंज व्हाइल सॉल्विंग आरसी पैसेजेस, द मोमेंट आई सी एनी पर्टिकुलर ऑप्शन एंड द मोमेंट माय माइंड डिसाइड्स दैट फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर. अब क्या होता है, पूरा माइंड प्रीजुडिस्ड हो गया. अब चाहकर भी स्टूडेंट्स हम बाकी ऑप्शंस को ओपन माइंडेडली पढ़ते ही नहीं है, एंड हियर इज वेयर वी कमिट अ मिस्टेक. इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अनटिल आई फाइनलाइज एनी पर्टिकुलर ऑप्शन, आप सभी ऑप्शंस को बहुत ओपन माइंडेडली पढ़ो, एंड किसी भी ऑप्शन को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट मत करो. कीप रिजेक्टिंग द ऑप्शंस, कीप फाइंडिंग आउट द रीजंस व्हाई दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. अगर हम इस तरह से क्रिटिकली सोचेंगे, देन यू सी आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर किसी पैसेज पर 5 क्वेश्चंस बेस्ड है, तो सभी 5 क्वेश्चंस में इतना डीप क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत नहीं होती. आउट ऑफ 5 पॉसिबली 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे, सिंपल होंगे, बट 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर स्टूडेंट्स हमें डेप्थ में जाना ही पड़ेगा. ओके, चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, आई विल बी टेकिंग वन वेरी गुड पैसेज. यस, so now this particular passage, I will be showing this passage
on 2 different slides. और उसके बाद स्टूडेंट्स there will be 5 questions. तो मैं एक काम करता हूँ, questions एक बार दिखा देता हूँ. तो these are 3 questions. Just have a look over the questions first. Okay? हमेशा देख लो ताकि आपको keywords पता चल जाए. And साथ में ये भी पता चल जाए कि what is the nature of the questions, what kind of questions are there. Okay, डायरेक्ट होने के चांसेस हैं या questions बहुत ज़्यादा उलझाने वाले हैं. Yes, have you gone through this? Done. And now students, these 2 more questions. Okay? अब keywords हमेशा ध्यान रखो, जैसे keep America beautiful, question number 5. Question number 4, what's hammering a nail is to halting a falling skyscraper. Okay? तो इन सब से हमें पता चल गया कि what kind of questions and what kind of keywords can be there. चलिए, now students, I am showing this passage to you. आराम से take your own time, read this passage properly. आप वैसे भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको वीडियो फॉर्मेट में बाद में देखेंगे. तो व्हेन यू वॉच इट, ओके, पॉज करके अच्छी तरह से इसको पढ़ो, फिर मैं सेकंड पार्ट दिखाता हूँ. ओके, ओके, चलो मेरे साथ वापस से पढ़ना इस पूरे पैसेज को. एक बार मैं सेकंड पार्ट दिखा दूँ, उसे भी पॉज कर लो. यस, जो भी बच्चे लाइव हैं वो मेरे साथ पढ़ेंगे इस पूरे पैसेज को. एंड जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, पॉज करके यू पीपल कैन गो थ्रू. चलिए, अब पॉज करके इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो. लाइव वाले स्टूडेंट्स जस्ट होल्ड ऑन, आई अगेन कम ऑन द पैसेज एंड वी विल सॉल्व इट टुगेदर. ओके, एंड देन दिस 2. ऑलराइट, चलिए, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप डिसाइड कर चुके हो, now students listen to my explanation and let us see what this passage talks about. I think students ये passage समझना बहुत मुश्किल इसलिए नहीं होगा because the topic of the passage is pretty simple. It talks about plastic pollution and students minded pollution and moreover climate change. इससे related कोई ना कोई passage तो CAT में commonly आ जाता है. So इस topic पर अगर 10, 12, 15 passages अपन solve कर लें, तो you will become more comfortable dealing with these kind of passages. Okay, चलिए, so all the students coming on this particular passage, मैं इसे पूरी तरह से आपके साथ डिस्कस करूंगा. so hold on. और कभी भी मैं पैसेज पढ़ाता हूं तो I take my own time, पर उसका बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा. एंड ये कुछ पैसेजेस आप मेरे साथ कर लो, CAT में आप देखोगे बहुत ज़बरदस्त मास्टरी हो जाएगी. The only thing worse than being lied to is not knowing you are being lied to. It is true that plastic pollution is a huge problem of planetary proportions. Try to understand. कहीं पर भी कोई नया वर्ड आ जाए तो उसे अंडरलाइन जरूर करना. ओके, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर अंडरलाइन मत करना, ठीक है, एक पट अलग से इस वर्ड को नोट करना. सो व्हेन आई से प्लानिटरी प्रोपोर्शंस, इसका मतलब है मैसिव प्रोपोर्शंस, बहुत बड़े स्केल पर. ओके, एंड इट इज ट्रू, वी कुड ऑल डू मोर टू रिड्यूस आवर प्लास्टिक फुटप्रिंट. The lie is that blame for the plastic problem is wasteful consumers and that changing our individual habits will fix it. सबसे बड़ी प्रॉब्लम झूठ बोला जाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला हमसे झूठ कह रहा है. So the only thing worse than being lied to is not knowing you are being lied to. And what is the lie here? The lie here is ये जो प्लास्टिक की मैसिव प्रॉब्लम है, who is responsible for this? तो झूठ हमसे ये बोला जाता है, the wasteful consumers are responsible. And these consumers, if they change their habits, तो possibly this plastic problem can be resolved. But students author कहता है ये तो झूठ है. इसका मतलब है author नहीं मानता कि consumers are liable for this problem. Okay? Consumers are responsible for this problem. Author ये नहीं मानता. That is the reason author says ये तो झूठ है, understand. चलिए, इस thought को और डेवलप करते हैं आगे. Recycling plastic is to saving the earth. What's hammering a nail is to halting a falling skyscraper. Students सोचो, जितने कंज्यूमर्स प्लास्टिक यूज करते हैं, चलो वो जितना भी प्लास्टिक वेस्ट करते हैं आप उसको रिसाइकल भी कर लो, फिर भी ऑथर कहता है दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज द प्रॉब्लम इज एट अ वेरी मैसिव स्केल. एंड दैट इज द रीजन द ऑथर इज गिविंग अ वेरी ब्यूटिफुल एनालॉजी. एंड व्हाट इज द एनालॉजी हियर? Recycling plastic is to saving the earth. What's hammering a nail is to halting a falling skyscraper. तो स्टूडेंट्स, किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग को एक छोटे से नेल से रोका नहीं जा सकता. ठीक उसी तरह से
इतनी बड़ी प्लास्टिक की प्रॉब्लम को केवल कंज्यूमर हैबिट्स को चेंज करके एंड प्लास्टिक को रिसाइकल करके यू पीपल कैन नॉट स्टॉप. दैट इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू से. वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा. तो एक्चुअली ऑथर यही बोलना चाहता है कि प्लास्टिक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है एंड द सोल्यूशन इज नथिंग. ओके, you struggle to find a place to do it and feel pleased when you succeed, but your effort is wholly inadequate and distracts from the real problem of why the building is collapsing in the first place. Students, what beautiful lines the author has written. Author कहता है कि ठीक है, कंज्यूमर्स को हमको क्या बोल दिया जाता है कि आप तो रिसाइकिल करो, आप तो प्लास्टिक को वेस्ट कम करो, एंड फिर हम क्या करते हैं कि चल सब्जी खरीदने जाना है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग हम एक कपड़े का थैला लेते हैं और प्लास्टिक को अवॉइड करके वी बिकम वेरी हैप्पी कि आज मैंने 3 प्लास्टिक कम यूज की. और ऑथर सेज ओके, इतनी छोटी सी चीज से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. तो ये हमारी जो एफर्ट्स हैं ये इनएडिक्वेट है एंड दस डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम कि अल्टीमेटली ये बिल्डिंग कोलैप्स क्यों हो रही है. मतलब प्लास्टिक का इतना मैसिव पोल्यूशन हो क्यों रहा है. तो सबसे पहले अपन रूट कॉज पर तो जाएं. दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. The real problem is that single-use plastic, the very idea of producing plastic items like grocery bags, which we use for an average of 12 minutes but can persist in the environment for half a millennium, is an incredibly reckless abuse of technology. Encouraging individuals to recycle more will never solve the problem of a massive production of single-use plastic that should have been avoided in the first place. सेकेंड पैराग्राफ एंड होते होते समझ में आ जाता है कि ऑथर क्या कहना चाहता है. Author wants to say that ये जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम है it is not because of the wasteful consumers. कि consumers बहुत वेस्ट करते हैं and वो रिसाइकल प्रॉपर करने में हेल्प नहीं करते. Author says the problem lies in massive production of single-use plastic. Why don't we regulate the production? And here is where these companies are telling a lie to the society. तो students, सेकेंड पैराग्राफ होते होते काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका है कि ultimately what the passage wants to say, what the author wants to say. चलिए, coming on the third paragraph. As an ecologist and evolutionary biologist, I have had a disturbing window into accumulating literature on the hazards of plastic pollution. Hazards का मतलब क्या होता है? Danger. Okay? Scientists have long recognized that plastics biodegrade slowly, if at all. Okay? And pose multiple threats to wildlife through entanglement and consumption. More recent reports highlight dangers posed by absorption of toxic chemicals in the water and by plastic odors that mimic some species' natural food. The plastics also accumulate up the food chain, and studies now show that we are likely ingesting it ourselves in seafood. Students try to understand. This third paragraph mein I am majorly discussing about the possible threats of this plastic pollution. तो इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है और किस तरह से by food chain it is entering human body as well. The third paragraph, to be very honest, इस पूरे पैसेज के कोर जिस्ट के हिसाब से थर्ड पैराग्राफ जो है, if I talk about the overall theme of the paragraph, if I talk about the overall theme of the passage, उसके रिस्पेक्ट में थर्ड पैराग्राफ is not much important. Why I'm saying this, try to understand. थर्ड पैराग्राफ सिर्फ ये बताता है कि what are the major disadvantages of this pollution. But try to understand, discussing the disadvantages is not the main theme of the passage. The main theme of the passage happens to be to raise this point that consumers are not responsible for this massive level of pollution, but it is mega scale production which is the root cause. So that is what the main purpose of writing the passage. तो प्लास्टिक पोल्यूशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसको डिस्कस करना ऑथर का मेन पॉइंट नहीं है. इसीलिए समझ में आना चाहिए कि थर्ड पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है as far as the theme of the passage is concerned. But ठीक है, we have gone through this. चलो चेक करते हैं students. Coming on the fourth one. Beginning in the 1950s, big beverage companies like Coca-Cola and Anheuser-Busch, along with Philip Morris and others, formed a non-profit called Keep America Beautiful. The students and सब companies ने मिलकर 1950s में एक non-profit movement start किया, and the name of that was Keep America Beautiful. और इसी पर students, you people know that one question is also based. Its mission was to educate and encourage environmental stewardship. Stewardship का मतलब होता है students leadership. Okay, leadership. At face value. Face value का मतलब है
ठीक है, ऊपर से दिखने में दीज एफर्ट्स सीम बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब है चैरिटेबल होना, ठीक है, समथिंग विच हैज सम गुड फेथ, सम गुड पर्पस। तो बनी 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 हमेशा ध्यान रखो, wherever students or people will have this root word, this prefix bani, bani का मतलब ही होता है something good. So when I say benevolent, इसका basic मतलब है students, it has to be charitable, it will be good, it will be good for the society. The students at face value, these efforts seem benevolent, but they obscure. And what is the meaning of obscure? To hide the real problem, which is the role that corporate polluters play in the plastic problem. Wonderful. ऑथर कहता है स्टूडेंट्स एंड सब कंपनीज ने मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक ड्राइव स्टार्ट किया, कीप अमेरिका ब्यूटीफुल, बट दिस वाज एन आई वॉश। यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आई वॉश? दिखता कुछ और है कुछ और। तो ऑथर ये कहता है एट फेस वैल्यू इट सीम्स लाइक दीज एफर्ट्स आर वेरी बेनिवोलेंट, बट एक्चुअली दे आर हाइडिंग द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कंपनीज इस तरह का ड्राइव चलाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। दैट इज व्हाट द ऑथर सेज हियर। दिस क्लेवर मिसडायरेक्शन हैज लेड जर्नलिस्ट एंड ऑथर Heather Rogers to describe Keep America Beautiful as the first corporate greenwashing front. Students, जिस तरह से आई वॉश होता है ना, किसी को धोखा देना, इसी तरह से एक वर्ड आता है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है यहाँ पर कंपनीज धोखा देती है, एंड कंपनीज इस तरह से प्रिटेंड करती है कि वॉट एवर द कंपनीज आर डूइंग इट इज नॉट सो बैड और इट इज नॉट टू बैड फॉर द एनवायरमेंट। तो इकोलॉजिकली ये बहुत बुरा काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह से स्टूडेंट्स वो अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, अपने आप को प्रिटेंड कर दिया, वेराज रियलिटी कुछ और है। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स एक तरह से एनवायरमेंटली धोखा देना, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ओके, अंडरस्टैंड। सो Heather Rogers says thus keep America beautiful as the first corporate greenwashing front, as it has helped shift the public focus to consumer recycling behavior। क्योंकि आप इस तरह की मुहिम चलाकर कंज्यूमर्स को अवेयर कर रहे हो कि भाई प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करो, कम यूज करो, दिस दैट। बट ऑथर सेज सब कुछ शैम है, सब कुछ झूठा दिखावा है, झूठ है, अंडरस्टैंड। देखिए सबसे बड़ी कल्प्रिट तो ये कंपनीज हैं, दैट इज व्हाट द ऑथर सेज, एंड एक्टिवली थ्वार्टेड legislation that would increase extended producer responsibility for waste management। थ्वार्टेड का मतलब होता है स्टॉप करना, डिस्करेज करना, लेजिस्लेशन का मतलब कानून बनने से। तो कुल मिलाकर कंपनीज क्या कर रही है? कीप अमेरिका ब्यूटीफुल, इस तरह की ड्राइव चलाकर एक तरफ तो दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स, बट एक्चुअली शी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस इज नॉट दैट। द पर्पस इज टू शिफ्ट देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द कंज्यूमर्स। तो जिम्मेदारी लेने के बजाय जिम्मेदारी कंज्यूमर्स पर डाल देना। तो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज। ये तो आई वॉश है, ये तो ग्रीन वॉश है, अंडरस्टैंड। और इस मुहिम का, इस मूवमेंट का एक और पर्पस है ताकि गवर्नमेंट को रोका जा सके कि गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून न बनाए जिसमें कंपनीज पर लायबिलिटी बढ़ जाए। तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह की ड्राइव चलाकर कंपनीज एक्चुअली गवर्नमेंट के सामने भी एक पॉजिटिव इमेज बनाना चाहती है। देखो हम तो वैसे भी बहुत अवेयर हैं, so much we are doing for the ecology and the environment, so that is what the companies are trying to do here. Okay, coming on, the greatest success of Keep America Beautiful has been to shift the onus का मतलब होता है burden और responsibility of environmental responsibility onto the public while simultaneously becoming a trusted name in the environmental movement. Absolutely. तो इस तरह का ड्राइव चलाकर वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालना चाहती है, एंड दैट इज समथिंग स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ा आई वुड से आई वॉश है। यही तो सबसे बड़ा धोखा है, अंडरस्टैंड, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। कमिंग ऑन द लास्ट पैराग्राफ, सो व्हाट कैन वी डू टू मेक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ प्लास्टिक अ रियलिटी? फर्स्ट, रिजेक्ट द लाई। लिटरबर्ग्स, ये जो प्लास्टिक का कचरा अपन कहीं पर भी फेंक देते हैं, इन्हें कहते हैं लिटरबर्ग्स, are not responsible for the global ecological disaster of plastic. Humans can only function to the best of their abilities given time, mental bandwidth and systemic constraints. आप कॉमन लेमैन से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि प्लास्टिक को कम यूज करें, इधर उधर ना फेंकें? ऑथर कहता है लेमैन और एक कॉमन ह्यूमन, उसका जो सोचना है, उसका जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है।
आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट द ऑथर सेज. आर ह्यूज प्रॉब्लम विद प्लास्टिक इज द रिजल्ट ऑफ अ परमिसिव लीगल फ्रेमवर्क. तो ये जो कानून है जो बड़ी बड़ी कंपनीज को परमिट करता है to manufacture plastic at huge scale, that is the root cause. So, result of a permissive legal framework that has allowed the uncontrolled rise of plastic pollution. Despite clear evidence of the harm it causes to local communities and the world's oceans. Recycling is also too hard in most parts of the US and lacks the proper incentives to make it work well. The कुल मिलाकर स्टूडेंट्स सारे एविडेंसेस हैं, सब कुछ है, फिर भी ये झूठ बोला जाता है. अनबिलीव में स्टूडेंट, जब तक मैंने इस पैसेज को नहीं पढ़ा था, मैं भी एक्चुअली यही सोचता था कि हमें प्लास्टिक कम यूज़ करना चाहिए और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. कम यूज़ करना चाहिए इज़ ओके, पर उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इज़ एक्चुअली नॉट ओके. ओके, चलिए. सो ऑल द स्टूडेंट्स, आई गेस यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट द पैसेज टॉक्स अबाउट. सो इफ एनीवन आस्क मी व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, अब स्टूडेंट्स आपको थीम गेस करना बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा. ओके, चलिए. कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द राइट आंसर? Yes, let us see. So which of the following interventions would the author most strongly support? Okay, absolutely. The moment you understand the theme of the passage, giving the answer here becomes easy. So passing regulations targeted at producers that generate plastic products. Absolutely. Author इसी से तो agree करेगा. Author यही तो चाहता है कि सरकार ऐसे रूल्स बना दे, ऐसे रेगुलेशंस बना दे, कंट्रोल करे इतना जो मैसिव प्रोडक्शन हो रहा है. So students, that is what the author wants. बाकी सभी options are wrong. Students, author क्या intervention चाहता है? तो fourth option, that is the only correct answer. If you think like कोई और option बिल्कुल सही है, do let me know. Comment box में आप question डाल दें. I will give the solution to that as well. And the other students can also participate in this discussion. Okay, और students इस channel को आप अपना पूरा friend बना लो till you eventually join a good B school. डू अंडरस्टैंड, अगले कई महीनों तक जितने ऑनलाइन चैनल चल रहे हैं कैट के, उन सब ऑनलाइन चैनल्स में सबसे ज़्यादा, सबसे इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी जो करने वाला है वो द सेज कैट. यस, आप तो वीडियोस को फॉलो करो एंड यू विल कम टू नो. द ऑथर लिस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ प्लास्टिक एक्सेप्ट द. यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं एक को छोड़कर, विच इज दैट which is not mentioned in the passage. So the author lists all the negative effects except what? So slow pace of degradation. Anyway students, that is given. तभी तो उसमें लिखा था हम 12 मिनट यूज करते हैं लेकिन 500 साल तक तो वो खत्म ही नहीं होता प्लास्टिक. एयर पोल्यूशन आई गेस पूरे पैसेज में कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिला. पॉइजनस केमिकल्स रिलीज्ड इन द वाटर एंड फूड वी कंज्यूम, दिस इज एनीवे गिवन. एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स, इवन दिस इज गिवन. तो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन सी. स्टूडेंट्स, ये भी कैट का क्वेश्चन है एंड कितना डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन. कमिंग ऑन द थर्ड वन, इन द फर्स्ट पैराग्राफ द ऑथर यूजेस लाई टू रेफर टू. So students, the author uses lie, this word, to refer to. First option, blame assigned to consumers for indiscriminate use of plastics. Absolutely, this is what the lie the companies are telling. Okay, तो कंपनीज ने दोष किस पर दे दिया? कंज्यूमर्स पर डाल दिया कि आप लोग गलत अब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, इस वजह से सब कुछ होता है. और स्टूडेंट्स, ऑथर कहता है बेटा तुम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो इसीलिए सब कुछ होता है. अंडरस्टैंड? इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन दैट इटसेल्फ बिकम्स द लाई. आई होप द पॉइंट इज ओके. डन? Yes. Coming on students, question number 4. In the second paragraph, the phrase what hammering a nail is to halting a falling skyscraper means. Yes. Anyway students, जब मैंने पढ़ाया था, समझाया था, at that time I discussed. Okay, a beautiful analogy. यही तो है, recycling plastic and solving the problem of plastic pollution is just like किसी गिरते हुए बिल्डिंग को एक छोटे से नेल से रोकना. So students, what is the best answer here? If you compare all the answers, focusing on consumer behavior to tackle the problem of plastic pollution, this is the right answer. Because इसी को समझाने के लिए this analogy has been used. कि consumer behavior को change करके you will not be able to solve this massive problem. Okay, so that is the reason this is nothing. This solution is nothing in front of the kind of problem which is there. The student's third option becomes the correct answer. And coming on fifth one, जो थोड़ा सा आपको confuse कर सकता है, it can be inferred that
The author considers Keep America Beautiful organization. Yes, come on everyone. Possibly बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर दिया होगा फर्स्ट ऑप्शन. ओके, वाई? बिकॉज सर पैसेज में ग्रीन वॉश भी था, पैसेज में बेनिवोलेंट अटेम्प्ट भी है, एंड पैसेज में स्टूडेंट्स इफ यू सी पब्लिक रिसाइकलिंग हैबिट्स, ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं. तो स्टूडेंट्स हो सकता है यू पीपल में थिंक लाइक, हो सकता है स्टूडेंट्स यू पीपल में थिंक लाइक यस यस यस, ये जो ग्रीन वॉश वर्ड है ओके एंड बेनिवोलेंट वर्ड है, इसकी वजह से फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर. बट डू अंडरस्टैंड, केवल कीवर्ड्स आने से काम नहीं चलता. अंडरस्टैंड उस सेंटेंस का मीनिंग क्या वही है जो पैसेज में लिखा है. नाउ अंडरस्टैंड, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर कंसिडर्स दिस मूवमेंट एज. पहली चीज तो ऑथर का इस मूवमेंट को लेकर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है. ऑथर सेज ये मूवमेंट ही धोखा है. अंडरस्टैंड, सो इट्स अ ग्रीन वॉश बिकॉज धोखा है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. Because it was a benevolent attempt? No, this reason is not correct. Not because it's a benevolent attempt. But author says, at face value, it seems to be benevolent, but actually it is not. The students जो language यहाँ पर लिखी है, वो तो ये कहता है कि it's a green wash because it's a benevolent attempt. Whereas the author says the attempt is not at all benevolent. It appears to be benevolent, but actually it is not. Okay? इसीलिए फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन. बिकॉज शैम का मतलब भी होता है ग्रीन वॉश, शैम का मतलब भी होता है स्टूडेंट्स धोखा. ओके, प्रिटेंड करना. तो स्टूडेंट जब आप प्रिटेंड करते हैं, झूठा दिखावा करते हैं, उसको अपन कहते हैं शैम. ओके, देयर कैन बी सम सिनोनिम्स. क्वैक, यस, क्वैक का मतलब भी क्या होता है? शैम. वन मोर वर्ड कैन बी टेकन एज शार्लेटन. यस, इसका भी मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रिटेंड करना, है कुछ और दिखाना कुछ और. तो इट्स अ शैम एज अ डाइवर्टेड अटेंशन फ्रॉम द रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स इन प्लास्टिक पोल्यूशन. तो सेकेंड ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली. ओके, सो ऑल द स्टूडेंट्स, आई गेस बड़ा अच्छा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैसेज, मज़ा आया होगा आप सब लोगों को. एंड बाय दिस आज का जो लाइव है उसे हम लोग एंड करेंगे. बट यस, ऐसे पैसेजेस आप मेरे साथ करो. एनीवे स्टूडेंट्स, ये पैसेज भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही था, बट होल्ड ऑन, अभी तो बहुत पैसेजेस करवाऊंगा. ऐसे ऐसे पैसेज करवाऊंगा जिसकी एक लाइन को समझने में भी स्टूडेंट्स बहुत दम लगेगा. यस, इट्स माय प्रॉमिस टू यू, वी विल टेक ऑल सच पैसेजेस. सो बने रहो आइकन स्केच के साथ. सी यू वेरी सून. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.